इस वीडियो में हम टेंस के बारे में बात करेंगे और हम टेंस को सीखेंगे। टेंस किसी भी लैंग्वेज का, खास तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही अहम जुज़ है। टेंस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियोस को एंड तक देखें और इसको लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हों और उनको टेंस सीखने में आसानी हो। ये उन बच्चों के लिए है जो टेंस में वीक हैं, इंग्लिश में वीक हैं, उनको टेंस की समझ नहीं आ रही, तो इस वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह वो टेंस को अच्छी तरह समझ पाएंगे। नाउ वी लर्न द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। Definition of the past indefinite tense is: the past indefinite tense, also known as simple past tense, is used to indicate a finished or complete action task that occur or happened at a specific point in time in the past. The event can be short or long. Structure is: in the simple past, most regular verbs use the past form. Subject plus verb in the past form plus adverb of time and remaining sentence. Example of the past indefinite tense is: I wrote articles on different topics. He read various kinds of books. They played football in that field. He went to the library yesterday. We came for shopping in this market last week. These are the example of past indefinite tense. In past indefinite tense, we use second form of the verb. Make the past indefinite tense negative. We use did not after the subject make sentence negative. Formula for making a past indefinite verb negative is subject plus did not plus verb in the root form plus remaining sentence. Remember that in negative form of the past indefinite tense, we use root form of the verb. Example is: I did not write article on different topics. In this example, I put did not after the subject and use root form of the verb to make past indefinite tense as negative. He did not read various kind of books. They did not play football in the field. She did not prefer coffee to tea. He did not go to the library yesterday. In these examples, we just simply put did not after the subject and use root form of the verb to make past indefinite tense as negative. Make the past indefinite tense as interrogative. The formula for asking a question in the simple past is did plus subject plus verb in the root form plus remaining sentence and question mark at the end of the sentence. Look at these examples. Did I write articles on different topics? In this example, we put did at the start of the sentence and root form of the verb. Second, did he read various kind of books? C. Did they play football in the field? Did she prefer coffee to eat? Did we come for shopping in this market last week? These are the example of past indefinite tense as interrogative. Now we learn past progressive tense or past continuous tense. Definition of past progressive tense is: used to demonstrate an action that was happening in the past for a period of time in a particular context. The context can be a specific time or another action. Structure of past progressive tense is: subject, then auxiliary verb was and were, then present participle plus object and remaining sentence. Progressive tense, we use was and were as helping verb or auxiliary verbs. We were singing our favorite song. He was drinking. These are the examples of past continuous tense. Make the past progressive negative. Structure: put word not after auxiliary verb was and were. Subject
plus auxiliary verb was या or were, then not, then present participle, then object and remaining sentence. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को नेगेटिव में तब्दील करने के लिए हम वाज या वर के बाद नॉट लगा देंगे, हमारा सेंटेंस नेगेटिव में तब्दील हो जाएगा. एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट वॉचिंग टेलीविजन, शी वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, असलम वॉज नॉट बेकिंग अ केक, वी वर नॉट सिंगिंग अवर फेवरेट सॉन्ग्स, they were not making a basketball ground. These are the example of past continuous tense negative. Make the past progressive interrogative. Structure, put helping verb was were in the start of the sentence and place question mark at the end. Formula, auxiliary verb was and were, then subject, then present participle, then object and remaining sentence. एग्जाम्पल, वाज आई वॉचिंग टेलीविजन, क्या मैं टीवी देख रहा था. हमने इसको इंटरोगेटिव में तब्दील करने के लिए वाज को सेंटेंस के आगाज में लगा दिया, जिससे हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव में तब्दील हो गया. सेकंड, वाज शी रीडिंग अ बुक, क्या वो किताब पढ़ रही थी. वाज असलम बेकिंग ए केक, क्या असलम एक केक बना रहा था. वर वी सिंगिंग अवर फेवरेट सॉन्ग, क्या हम अपने पसंदीदा गाने गा रहे थे. वर दे सिंगिंग अवर फेवरेट सॉन्ग्स, क्या वो हमारे पसंदीदा गाने गा रहे थे. वर दे फ्लाइंग टू कराची, क्या वो कराची जा रहे थे. इन सेंटेंस में हमने देखा कि हमने वाज और वर को सेंटेंस के आगाज में लगा दिया और बाकी सारा सेंटेंस सेम उसी तरह और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दी, तो पास्ट कंटिन्यू टेंस इंटरोगेटिव में तब्दील हो जाता है. मेक द पास्ट प्रोग्रेसिव नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. स्ट्रक्चर, पुट वाज वर इन स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट एंड प्लेस क्वेश्चन मार्क एट द एंड. Formula is was were plus subject plus not plus present participle plus subject and remaining sentence. Example, was I not watching television, क्या मैं टीवी नहीं देख रहा था. Was she not reading a book, क्या वो किताब नहीं पढ़ रही थी. Was असलम not baking a cake, क्या असलम केक नहीं बना रहा था. Were they not singing our favorite song, क्या वो अपने पसंदीदा गाने नहीं गा रहे थे. इन सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब वाज को शुरू में लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया और हमारा सेंटेंस सवालिया और मनफी दोनों बन गए. नाउ वी लर्न पास्ट परफेक्ट टेंस. फेल माजी मुकम्मल. डेफिनेशन, द पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड टू डेमोंस्ट्रेट एन एक्शन दैट अकर बिफोर another action in the past. There are usually two completed actions in the sentence. One happened before the other. फेल माजी मुकम्मल उस अमल को जाहिर करता है कि जो किसी काम से पहले शुरू हुआ और उससे पहले मुकम्मल हो गया. स्ट्रक्चर, टू मेक द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हैड एंड ए वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. फेल माजी मुकम्मल की उर्दू में पहचान ये है कि जुमले के आखिर में चुका था, चुके थे, चुकी थी, चुकी थी आएगा तो वो जुमला फेल माजी मुकम्मल का होगा. इंग्लिश में हम इसको ट्रांसलेट करने के लिए हैड का इस्तेमाल करते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं. अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में दो सेंटेंस इस्तेमाल हो और एक में काम पहले खत्म हुआ हो और दूसरे में बाद में काम खत्म हुआ हो, तो हम जो पहले काम खत्म होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे और जो बाद में होगा उसका तर्जुमा पास्ट इंडेफिनिट से किया जाता है. मैं फिर बता देता हूँ, अगर
पास्ट में या ज़माने माजी के किसी फिक्रों में दो क्लासों के ख़त्म होने का जिक्र हो, दो कामों के ख़त्म होने का जिक्र हो, तो इनमें से जो काम पहले ख़त्म हुआ हो उसका तर्जुमा पास्ट परफेक्ट में किया जाता है, और जो काम बाद में हो उसका तर्जुमा पास्ट इंडेफिनिट में खत्म किया जाता है। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद हम हैड इस्तेमाल करेंगे, वर्ब इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, देन रिमेनिंग सेंटेंस। मैं रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और रिमेनिंग सेंटेंस आएगा। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। अनम हैड गॉन टू इस्लामाबाद। अनम इस्लामाबाद जा चुकी थी। शी हैड ड्रंक वाटर, वो पानी पी चुकी थी। यू हैड रेड द बुक, तुम किताब पढ़ चुके थे। आई हैड डन माई होमवर्क, मैं अपना काम कर चुका था। वी वर टू लेट, द रेन हैड लेफ्ट, हम काफी देर से पहुंचे, उस वक्त तक ट्रेन गुजर चुकी थी। हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। इन सेंटेंस में हमने देखा कि हमने हैड का इस्तेमाल किया और वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, वर्ब की तीसरी फॉर्म और रिमेनिंग सेंटेंस। मैंने पहले भी बताया है कि अगर किसी जुमले में दो कामों का जिक्र हो तो जो काम पहले मुकम्मल हुआ है उसका हम पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, और जो काम बाद में मुकम्मल हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। Make the past perfect tense negative. Put word not after helping verb had. Subject, उसके बाद had, उसके बाद not, then verb in past participle form and remaining sentence. Look at the examples. Anam had not gone to Islamabad. अनम इस्लामाबाद नहीं जा चुकी थी। She had not drunk water. वो पानी नहीं पी चुकी थी। She had not read the book, वो किताब नहीं पढ़ चुका था। इन तमाम एग्जाम्पल में हमने देखा कि हैड के बाद हमने हैड नॉट का इस्तेमाल कर दिया तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव में तब्दील हो गया। He told us that the train had not left. He had not played cricket. Make the past perfect tense interrogator. Put word had at start of the sentence and question mark at the end. Past perfect tense को इंटरोगेटर में तब्दील करने के लिए हम दो तब्दीलियां करेंगे। नंबर वन इज हैड को हम सेंटेंस के आगाज में ले आएंगे और एंड पे हम सवालिया निशान लगाएंगे। बाकी हमारा तमाम सेंटेंस उसी तरह रहेगा। हैड plus subject plus verb in past participle form, then remaining sentence and question mark. Examples: had Anam gone to Islamabad? Had she drunk water? क्या अनम इस्लामाबाद जा चुकी थी? क्या वो पानी पी चुकी थी? Had you read the book? क्या तुम किताब पढ़ चुके थे? Had I done my homework? क्या मैं अपना काम कर चुका था? Had he played cricket? क्या वो क्रिकेट खेल चुके थे? इन सेंटेंस में हमने देखा कि सबसे पहले हमने हैड लगाया, उसके बाद अब सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब इन थर्ड फॉर्म और रिमेनिंग सेंटेंस। तो पास्ट परफेक्ट को सवालिया में तब्दील करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैड को स्टार्ट में लगा देंगे और आखिर पे सवालिया निशान लगा देंगे, तो हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव में तब्दील हो जाएगा। मेक द पास्ट परफेक्ट टेंस नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। स्ट्रक्चर: पुट वर्ड हैड एट स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, नॉट आफ्टर सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड। क्या करना है हमने? हैड को सेंटेंस के आगाज में ले आना है और नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाना, तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में तब्दील हो जाएगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड रिमेनिंग सेंटेंस। एग्जांपल्स:
हैड अनम नॉट गॉन टू इस्लामाबाद, क्या अनम इस्लामाबाद नहीं जा चुकी थी? क्या किया हमने? हैड को हमने स्टार्ट में नहीं लगाया, अनम सब्जेक्ट है, नॉट लगाया हमने नफी बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। गॉन तीसरी फॉर्म है वर्ब की, गो वेंट गॉन टू इस्लामाबाद, द मीनिंग सेंटेंस। हैड शी नॉट ड्रंक वाटर, क्या वो पानी नहीं पी चुकी थी? हैड यू नॉट रीड द बुक, क्या वो किताब नहीं पढ़ चुका था? मनफी के जुमले बनाने हमने सीखे। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद सीखी और एजुकेशन के मतलब वीडियोस देखने का मौका मिले। थैंक यू।